یہ سب پیپرز میں نے تیار کروا دیے ہیں، آپ لوگوں کے شیئرز کے اور باقی سب تفصیل بھی میں نے لکھ دی ہے۔ فیکٹری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے خسارے میں جا رہی تھی، اس حساب سے سب گوشوارے اور حصے تیار کیے گئے ہیں۔ فیکٹری میں موجود خام مال اور جو پروسیسنگ میں ہے اس کی ادائیگی میں سال لگ سکتا ہے، اور جہاں تک گھر کی بات ہے اس کی قیمت میں سے تیسرا حصہ آپ لوگوں کا ہے۔ اس سب تفصیل کے مطابق آپ کا حصہ تقریباً 16 لاکھ روپے بنتا ہے، جو میں آپ کو ٹھیک 5 دن بعد ادا کروں گا۔ امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تایا جی کے چہرے پر دنیا جہان کی اجنبیت تھی اور آنکھوں میں سرد مہری۔ وہ بھی چند منٹ پہلے ممی کے بلانے پر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ زویا اور حارث ممی کے بستر پر ہی بیٹھے تھے جب تایا جی اندر داخل ہوئے، اور اندر موجود نفوس کے وجود سے قطعاً بے نیاز انہوں نے ممی کے پاس کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑے پیپرز میں سے ایک پر لکھی یہ تفصیل کسی روبوٹ کی طرح پڑھنا شروع کر دی تھی۔ پھر فائل بند کر کے انہوں نے ممی کے آگے رکھ دی، جبکہ ممی کی آنکھوں سے تو ساون کی جھڑی لگی تھی۔ تایا جی نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہ تو ان تینوں کو دیکھا نہ ممی کے آنسوؤں کو۔ بھائی صاحب، یہ سب کیا ہے؟ میں نے اس طرح تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ پلیز مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اس چھت کے نیچے پڑا رہنے دیں۔ اس گھر سے نکل گئی تو ان کے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ پلیز بھائی صاحب، غلطی کی معافی خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ بھی آپ کی بچی ہے، آپ ہی اس کے باپ ہیں، آپ ہی نے ان سب کی مجھ بیوہ کی ذمہ داری لی تھی، ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا تھا۔ پلیز ایک بار معاف کر دیں۔ سمجھیں ربیہ کی طرح۔ ممی سسکیوں کے درمیان منہ ہاتھ رکھے بمشکل کھول رہی تھی۔ ربیہ کا نام مت لیں، ربیہ کے ساتھ جو دشمنی آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ آپ کی بچی معصوم ہے تو میری بیٹی نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ٹھیکرے کی مانگ تھی وہ اس کی، جس سے صبح اس کا ہونے والا سسر نظر انداز کر کے چلا گیا، صرف اس بد کردار لڑکی کی وجہ سے جس نے اس گھر کی ہوا گندی کی۔ انہوں نے نفرت بھری ایک سلگتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، اور ان کا وہ گھٹیا خطاب اسے اپنی پیٹھ پر کسی کوڑے کی مانند لگا تھا۔ اسے لگا ڈیڈی ابھی فوت ہوئے ہیں اور وہ ننگے پاؤں ننگے سر ننگی سڑک پہ کھڑی ہے۔ تایا جی، روتے روتے اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ زور سے چیخی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، میں نے ایسا کچھ نہیں۔ چٹاخ! ممی نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا تھا، پھر ایک اور، اس کے بعد ایک اور۔ زبان دراز، منحوس، اپنے باپ کے آگے زبان چلاتی ہے۔ مانگ معافی پیروں میں گر کے۔ ممی نے اسے زوردار دھکا دیا تو بیڈ سے نیچے لڑک کر عین تایا جی کے قدموں کے پاس گر گئی۔ نہیں بھابھی، اس کی ضرورت نہیں، آپ معافی کی بات کرتے ہیں، میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے آپ کی بیوگی پہ ترس آتا ہے، اس عمر میں کہاں خوار ہوں گی؟ اگر آپ کو ادھر رہنا ہے تو اس کو یہاں سے چلتا کر دیں۔ سارے زمانے میں اس کے دفان ہو جانے کے اشتہار لگ چکے ہیں۔ آج صبح فیکٹری گیا تو 10 فون آ گئے، آپ کی بھتیجی مل گئی، اغوا ہو گئی تھی یا کسی کے ساتھ؟ مجھے لگا میرے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ اب ظاہر ہے اپنی بیٹی کو تو خود سے جدا نہیں کریں گی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنے رستے علیحدہ کر لیے جائیں۔ تایا جی اپنی صفاقی کی انتہا پر تھے اور وہ ان کے قدموں میں پڑی سسک رہی تھی۔ میں اس کو کہاں دفع کروں، نامراد کو کہاں پھینک دوں؟ زندہ ہے، مر تو نہیں گئی جو زمین میں دفن کراؤں؟ کوئی تختی پہ لکھا حرف تو نہیں جو آنسوؤں سے دھوؤں؟ کیا کروں میں اس کا؟ ممی نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کی کمر میں دھموکے لگائے۔ جہاں اس نے رات گزاری ہے وہیں روانہ کر دو۔ عزت، ذلت، ناموس، غیرت، ان لوگوں کے لیے سب برابر ہے، وہ اسے ہنسی خوشی قبول کر لیں گے۔ تایا جی کے لہجے میں بے حد حقارت تھی۔ 22-23 سال بھی کسی انسان کے غصے اور نفرت کو کم کر سکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو اس کے بہائے ہوئے یہ چند آنسو اور یہ 24 گھنٹوں کی ندامت ان کی بدگمانی کو کیا دھوئے گی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑ کر صاف کیا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی اٹھی اور دوسری طرف پڑے صوفے کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تایا جی کے بالمقابل ممی نے اس کی ڈھٹائی کو گویا آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اور جیسے شرم سے ان کا سر اور جھک گیا، جبکہ تایا جی کا غصہ سوا ہو گیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کے انداز؟ بہرحال میں نے دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کے پاس 5 دن ہیں اس گھر کو چھوڑنے کے لیے۔ میں نے عزت اور غیرت کا سودا کبھی نہیں کیا اور نہ کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرنا پڑے۔ آپ جانتی ہیں آپ کو پیمنٹ 4 دن بعد کر دی جائے گی۔ ابھی مجھے ربیہ کا معاملہ بھی درست کرنا ہے اور میں نے زریاب کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، اگلے ماہ وہ آ رہا ہے۔ میں نے دونوں بہن بھائی کا ایک ساتھ بیاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ بھی سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے لا تعلقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ممی کے سسکیوں اور ہچکیوں کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور بڑے کروفر سے چلتے کمرے سے باہر نکل گئے۔
मम्मी मत रोएं, इस तरह क्यों रो रही हैं? रोने से भला क्या मसला हल होगा? आपकी तबीयत खराब होगी। जोया ने मम्मी को अपने साथ लगाते हुए उनके आंसू साफ किए। मोला, ये दिन भी देखने थे मुझे। मैं इससे पहले मर क्यों ना गई? क्या करूं, कैसे बिगड़ी बनाऊं? वो बेकरारी से हाथ मलने लगी। मम्मी, जो बिगड़ चुका है आपके आंसू या फरियादी नहीं संवार सकती। जोया होले होले उनके कंधे दबाने लगी। ताया जी ने ना जाने कौन से जमाने की कीमत लगवाई है इस घर की। अभी चंद दिन पहले मेरी दोस्त के फादर ने इसी इलाके में एक कनाल का प्लाट खरीदा है, 60 लाख का। हमारा तो रकबा भी दुगना है और घर भी इतना नहीं पुराना। फिर जोया आहिस्तगी से बोली, मरो तुम सब जाकर हिसाब लगाकर मर जाओ। मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना। जो कुछ उन्होंने हमारे हिस्से में निकाला है वो हमारे शेयर का तीसरा हिस्सा भी नहीं। मगर मैं मजबूर हूँ। शाम में तुम्हारे मामू को फोन किया था, फोन तो उन्होंने सुबह ही कर दिया था। मुझे तो समझ नहीं आती ये खबर एक रात सुबह से भी पहले जंगल की आग की तरह कैसे सारे शहर में, सारे खानदान में फैल गई। उन्होंने फिर बेकरारी से हाथ मिले। तुम्हारे मामू कहने लगे, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तुम्हारे हिस्से के दावे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकता। जो कुछ मिल रहा है सबर शुक्र करके ले लो। मेरा और कौन है? ये हारिस अभी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं किस पर मान करूं, क्या दावा करूं? उम्र भर की कमाई एक रात में गारत हो गई। वो फिर रोने लगी। तुम्हारा बाप ही होता, ये दिन देखता। चलो अच्छा है वो नहीं है, वरना रात को ही मर चुका होता। उन्होंने सरदाह भरकर उसे देखा और जोरों शोर से रोने लगी। कमरे में अब उनकी सिसकियां गूंज रही थी। मम्मी, अब आपने क्या सोचा है? जोया चंद लम्हों बाद बोली, ये घर मेरा छप्पर छांव है, इसको तो छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। चंद लाख लेकर मैं कहाँ जाऊं? इस रकम में आता क्या है? फिर सारे अपनों से कटकर अलहदा हो जाऊं तो तुम दोनों को कौन पूछेगा? हारिस को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वक्त चाहिए। फिर तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता तय है वलीद के साथ। एक की खातिर तुम दोनों के नसीबों से खेल जाऊं? इसने कुछ सोचा नहीं कि वो फिर से रोने लगी। ठीक है, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि पत्थरों से बने इस घर में रहने वालों के दिल भी पत्थर से बने हैं। एक मामूली सी गलती को जिस अंदाज से लिया गया है मम्मी, मुझे खुद से नफरत होने लगी है। और इतनी नफरतों में कोई कैसे जी सकता है? इससे अच्छा है मैं ही मर जाऊं। आप उस घर की चौखट छोड़कर कहीं ना जाएं। अपने दोनों लाडलों को सीने से लगा कर रखें। मैं ही खुद को कहीं दफान कर लेती हूँ। आंसुओं के दरमियान उसने चीख कर कहा और दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। दिमाग खराब हो गया है इसका। ये नहीं सोचती कि मेरी नजर में तुम तीनों की भलाई है। अगर आज इसकी खातिर सबको छोड़ छाड़ कर चल पड़ूं तो कहीं कदम ना जमा पाऊंगी। सारे जमाने की थू थू अलहदा। जो दिमाग उसका लग गया उसके बाद तुम दोनों का सवाली कौन होगा? किस किस के आगे कस्में खाऊंगी इसकी पाक दामनी की? जब अपने यकीन नहीं कर रहे तो गैर कब करेंगे? मुझे तो सब नजर आ रहा है कि इस घर से निकलकर हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं अकेली बेवा क्या ऐसे हालात का मुकाबला कर सकूंगी? हारिस, तुम उठो, जाकर वलीद को बुला कर लाओ। 8 बज रहे हैं। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली। हारिस उठकर बाहर निकल गया। क्या करेंगी आप? जोया ने परेशान नजरों से उन्हें देखा। तुम जाओ उस बदनसीब के पास। जज्बात में आखिर कोई और हमाकत ना कर बैठे। उन्होंने उसे भी उठाते हुए उजलत भरे अंदाज में कहा तो जोया ना चाहते हुए भी सर हिलाकर बाहर निकल गई। तो वो बेकरारी से वलीद का इंतजार करने लगी। अम्मी, अम्मी देखें तो कौन आया है? दरवाजा रोशी ने खोला था। सामने मंजली मुमानी और वलीद को खड़े देखकर वो सलाम करना भी भूल गई और खुशी से चिल्लाते हुए अंदर की तरफ दाखिल हुए। रात के 9 बज रहे थे। स्याह रात चारों तरफ फैल चुकी थी। फिजा में शदीद हब्स था। दूर कहीं झींगर बोल रहे थे, बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह भाभी जान, आए। वलीद आओ बेटा, अंदर आओ। आप लोग दरवाजे में क्यों खड़े हैं? सादिया हाँफती कांपती तेज कदमों से बाहर आई थी। रोशी, बेवकूफ, इन्हें बैठक में तो बिठाती। आए भाभी जान। उन्होंने पहले भाभी को गले लगाने की कोशिश की और जरा की जरा उनके गले लगी, फिर उनके पीछे चलती हुई बैठक में दाखिल हो गई। रोशी बैठक के दरवाजे में खड़ी थी। वो दोनों खामोशी से जाकर बेत के बने सोफों पर बैठ गए। सोफे पर प्रिंटेड कुशन पड़े थे, दरमियान में लकड़ी की मेज और उसके सामने 2 कुर्सियां। कोने में पीतल का एक गमला पड़ा था जिसमें मसनूई पौधे लगे थे। रोशी, खाना तैयार है, पहले वो गर्म करके ले आओ, फिर बातें होंगी। सादिया की सांसें अभी भी मतवाजन ना हो सकी थी। ना खाना ना कुछ और, किसी चीज की जरूरत नहीं। रोशी तुम जाओ, हमें
कुछ जरूरी बात करनी है। सादिया ने भाभी के सर्दो सपाट चेहरे की तरफ देखा और रोशी को जाने का इशारा किया तो वो सुस्त कदमों से बाहर चली गई। इस घर ने जो तवाज़ो कर दी है हमारी, वो तो सारी जिंदगी में फरामोश ना कर सकूंगी। मजीद की जरूरत नहीं, वो बड़बड़ाई थी। क्या मतलब भाभी जान, जो कहना है खुलकर कहें। वो उनके अंदाज से पहले ही ठिठक चुकी थी। तहम्मुल से बोली, अब जो भी कहना है बहन खुलकर ही कहना है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नसीब में ये दिन भी आएंगे कि। उन्होंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया कि मुझ जैसी कमजात और हकीर के घर आकर कोई बात करना पड़ेगी। सादिया तन से बोली, छोटी ताई बात को उलझाए नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं। वलीद ने आहिस्तगी से कहा, मालूम है मुझे, कल बिया तुम्हारे घर आई थी। उन्होंने सादिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, कल तो मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। मेरी बच्ची इस घर में आई थी। हाँ, कल का दिन हमारे लिए भी यादगार रहेगा ताउमर, वो कुल्स कर बोली। वो रात भर रही थी यहाँ। हाँ, मौसम बेहद खराब था और हमारे पास सवारी नहीं थी। मैं कैसे भेजती उसे। बहुत बेचैन थी वो और मैं भी, मगर कोशिश के बावजूद। वो जैसे अफसोस भरे लहजे में बोली, और सुबह यहाँ से कैसे गई थी? आफताब के साथ। वो उसे घर छोड़ कर आए थे, वो बेचैन से लहजे में बोली। और तुम दोनों माँ बेटी उसके बाद कहाँ थी? कोशिश के बावजूद उनका लहजा तल्ख हो रहा था। हम किसी की अयादत को अस्पताल गए थे, लेकिन आखिर इस जिरा का मकसद। वो जिद होकर बोली, जिरा तो हमारे तकदीर ने की है, कटहरे में तो हमें नसीब ने लाकर खड़ा कर दिया है। वो एक गहरा सांस लेकर बोली और फिर झिलमिलाती आंखों के साथ मनोअन सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। ये गुल खिलाया है तुम्हारे मियाँ ने, मेरी बच्ची की मासूमियत को यूं दागदार किया कि उसने अपने सारे हिसाब चुका दिए इस खानदान से बदला लेने के। आखिर में वो रो ही पड़ी। मेरे खुदाया, और मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं। सादिया सर पकड़ कर बैठ गई। उन्होंने मुझसे भी जिक्र नहीं किया। या अल्लाह, चल लम्हे वो गुमसुम सी बैठी रही। अब मुझे बताओ, मैं अपनी मासूम बच्ची को किस कुएं में धक्का दूं जाकर? भाई साहब एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि बिया को इस घर से चलता कर दो या फिर तुम सबको लेकर निकल जाओ। और शेर के नाम पर जो कुछ दे रहे हैं, इतना तो शायद सासों की ज़कात भी ना बने। और मैं जवान बच्चों को लेकर कहाँ निकल पड़ूं? वो अपने आंसू पहुंचने लगी। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? किस तरह अपने इस नाकर्दा जुर्म की तलाफी करूं जो कुछ इस घर से आपकी बच्ची के साथ हुआ? सादिया ने भावज की शक्ल देखी। अगर कहती हैं तो मैं जाकर घर के सब लोगों के सामने भाई साहब को हल्फ उठाकर कसम खाकर जो वो कहें वो गवाही दे दूं। तुम्हारी गवाही? वो फुनकारी। वो तुम्हें कुछ नहीं समझते तो तुम्हारी गवाही कौन कबूल करेगा? तो फिर बताएं मैं क्या करूं? मेरे लायक क्या खिदमत है? वो कुछ रुखाई से बोली। उन्होंने इस जरियाब का रिश्ता भी पल भर में तोड़ दिया है, बल्कि कहीं और तय भी कर दिया है, और अगले माह उन दोनों की शादियां भी कर रहे हैं। आरफा ने आहिस्तगी से पुरमलाल लहजे में कहा। गोया बिया को वो माफ भी कर दें तो भी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। बहू? वो उसकी सूरत नहीं देख रहे। बदकिरदार तक क्या डाला है उस मासूम को, पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाला है। जीते जी वो तो मर गई, अल्लाह माफ करे। ऐसा तकब्बुर, एक यतीम के साथ ये ज्यादती। भाई साहब के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मुझे तो लगता है उन्हें किसी बहाने की जरूरत थी ये रिश्ता तोड़ने के लिए। सादिया आखिर में दबे लहजे में बोली, क्या कह सकती हूँ, मजबूर हूँ, बेबस हूँ। चलमे को खामोशी छा गई। राफे क्या कर रहा है आजकल? आरफा चल लम्हों बाद बोली, MBA का फाइनल है, वलीद के साथ ही है। शाम को पार्ट टाइम जॉब करता है, इसीलिए रात को देर से आता है। वो सरसरी लहजे में बोली। सादिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और कोई फैसला मुझसे हो नहीं पा रहा। मैंने भाई साहब की मिन्नत की कि वो मुझे कुछ वक्त दें, चंद माह में मैं बिया का कहीं देखकर रिश्ता कर दूंगी, मगर वो एक दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं। दूसरी सूरत में जायदाद के कागजों का पलंदा हाथ में लिए बैठे हैं कि पकड़ो और निकलो इधर से। सादिया चुपचाप सुनती रही। अब रातों रात मैं उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? वो ठंडा सांस भरकर बोली। सादिया ने सर झुका लिया। सही कह रही हैं आप, मुझे क्या खबर थी इतनी मामूली सी बात को ये रंग मिल जाएगा। आफताब जुबैरी, क्या कहूँ मैं तुम्हें? उन्होंने आखिरी फिक्रा दिल में कहा था। उन्होंने मुझे कहा है, बल्कि ताना दिया है कि इसको वहीं भेज दो जहाँ ये रात गुजार कर आई है। वो झिझकते हुए बोली तो सादिया ने चौंक कर उन्हें देखा। मतलब? अगर आप बिया को इधर भेजना चाह रही हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, वो मुझे रोशी से बढ़कर प्यारी होगी। वो ठहर ठहर कर बोली। यहाँ मगर किस नाते से? वो कोशिश के बावजूद मुद्दा बयान नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी बनकर, वो तेजी से बोली।
बेटी तुम्हारी एक ही है रोशी, सारी दुनिया जानती है। फिर आप बताएं। सादिया ने जैसे हथियार डाल दिए। तुम राफे के लिए बिया। वो चुप कर गई। ओह, उन्होंने होंठ सिकोड़े। अब समझी। मैं इस काबिल कब से हो गई भाभी जान, वो जैसे तंज से बोली। सादिया, अब तुम भी तंज करोगी? मैं तो पहले ही छलनी हो रही हूँ। उनकी आंखें फिर से छलकने लगी। भाभी जान, मैं तंज नहीं कर रही, सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ। मेरा घर आपके सामने है, आपके सर्वेंट क्वार्टर से भी गया गुजरा। आपकी बेटी कनालों में रहने वाली, गाड़ियों में घूमने फिरने वाली, हजारों की शॉपिंग करने वाली और खानों से भरी टेबल पर सूंघ कर खाने वाली, वो यहाँ कैसे रहेगी? तुम भी तो कनालों से उठकर आई थी, तुमने भी तो अपनी जिंदगी गुजारी है ना। मेरी बात छोड़े, मैंने तो जुआ खेला था, और जिंदगी कैसे गुजारी है अगर आपको इल्म नहीं तो फिर रहने दें इस जिक्र को यहीं। वो तलखी से बोली। आरफा सवालिया नजरों से उन्हें तकने लगी। कुछ देर को खामोशी छा गई। सादिया थोड़ी देर बाद आरफा लजाजत से बोली, भाभी जान, मुझे मालूम है इस वक्त आप बहुत मुश्किल में हैं, और चूंकि आप पर यह मुश्किल मेरे शोहर के घटियापन की वजह से पड़ी है। अगरचे ये भी एक कहने वाली बात है, अगर आफताब ऐसा ना भी करते तो भी भाई साहब। खैर आप इस वक्त जाएं, क्योंकि ये फैसला बहरहाल मैं अकेली तो नहीं कर सकती। मुझे आफताब से, राफे से मशवरा लेना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी राफे की मर्जी है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। सादिया, बहुत वक्त नहीं है मेरे पास, वो जैसे गिड़गिड़ाई। भाभी जान, जब आपको यकीन है कि आपकी बेटी बेगुनाह है, बेकसूर है, तो आप यूं खुद को क्यों हलकान कर रही हैं? और मैं आपको बताऊं, इस सारे किस्से में अगर भाई साहब जिम्मेदार हैं तो कुछ कमजोरी आपकी भी है। आपने खुद रो रो कर, मिन्नतें कर करके अपनी बेटी को सबकी नजरों में छोटा किया है। शायद शानदार जिंदगी एकदम से छोड़ना इसी तरह दुश्वार होता है कि आदमी अपनी इज्जत, अपने खून को भी दांव पर लगा देता है। वो तंज से बोली। आप जाएं, मैं कल शाम से पहले आपको फोन करके बता दूंगी। वो कहते हुए उठी तो आरफा कुछ शर्मिंदा सी उठ खड़ी हुई। बेहतर था आप खाना खा लेती। दरवाजे के पास सादिया मुरवतन बोली। वलीद उन दोनों से पहले बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ चुका था। मैं फोन का इंतजार करूंगी कल शाम से पहले, वो दहलीज पार करते हुए बोली। अल्लाह हाफिज भाभी जान, सादिया ने कहते हुए उनकी गाड़ी रवाना होने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। इस दुनिया में रिश्ते कुछ भी नहीं, सिर्फ जरूरत की जंजीरें हैं जो सबको एक दूसरे से बांधे हुए हैं, वरना रिश्ते कच्चे धागे एक जरा सी गलत फहमी के झटके से टूट जाते हैं। जरूरत पड़ी तो फिर गिरा लगाकर जोड़ लिया, तलखी हुई फिर से तोड़ दिया, और ये गिरों वाला बंधन कितना पायदार हो सकता है, इस बात को सोचने की ना तो सबको फुर्सत है ना जरूरत। वो दरवाजे से पुश्त लगाए, आंखें बंद किए सोचने लगी। सामने खड़ी रोशी उन्हें हैरान नजरों से देख रही थी। उसकी हैरत देखकर वो होले से मुस्कुरा दी। आखिर क्या मुसीबत है, नंबर क्यों नहीं मिल रहा? उसने कोई 10वीं बार जरियाब का नंबर ट्राई किया था। बिलाखिर कुछ देर बाद जरियाब की आवाज उसके कानों से टकराई। हेलो हेलो हेलो, मैं अबीहा। जरियाब, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से ट्राई कर करके थक चुकी हूँ, वो बेकरारी से बोली। मैं बिजी था, घर पे नहीं था। बहुत रस्मी था लहजा था जरियाब का। घर के फोन पर आंसरिंग मशीन, मेरा मैसेज। अबीहा, तुमने क्यों फोन किया है? उसने बड़े आराम से उसकी बात काटी। मैंने मैंने सुबह से फोन सुन लिया है मैंने। प्लीज जो बात करना है करो, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। बेहद रूखा लहजा था। बिया का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। जरियाब, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। इधर बहुत कुछ हो गया है। एक रात में, एक दिन में। वो सिसक उठी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपको ताया जान ने फोन किया? ताया ने। उसकी लंबी खामोशी पर वो बोली थी, मालूम हो गया है मुझे तुम्हारी इस गलत हरकत का खुमियाजा मेरे वालिदैन को कैसे भुगतना पड़ा है। कुछ एहसास है तुम्हें? मेरी बहन का रिश्ता तकरीबन टूट गया है, और जो खानदान भर में हमारी रुसवाई हुई है वो अलग। हमदानी अंकल की फैमिली नाराज हो चुकी है, और तुम अपनी परेशानी का सुना रही हो। परेशानी का पहाड़ तो हम पर टूटा है तुम्हारी वजह से। वो जैसे फट पड़ा। वो तो उसका लहजा सुनकर ही गूंग रह गई। तुम इस कदर अहमक लड़की होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो घटिया और नीच लोग जिनको कभी हमारे वालिदैन ने मुंह लगाने की कोशिश ना की, तुम उनमें रात बिताने चली गई। तुम्हें जरा शर्म ना आई? वो उसे बुरी तरह लताड़ रहा था। जरियाब, वो जैसे पत्थर की हो गई। अब बताओ, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? इन सारे हालात में तुम्हारा इस तरह फोन करना। वो ढिठाई का लफ्ज मुंह में ही दबा गया। जरियाब, क्या आपको मेरा यकीन नहीं? मैं कोई भी इस तरह की गलत हरकत जिसका इल्जाम ताया जान ने, मुझे तुम्हारा यकीन था,
وہ چبا چبا کر بولا۔ اب نہیں ہے کیا؟ اب اگر تمہارا یقین کروں تو بیا میں اپنے والدین کا مان نہیں توڑ سکتا، اور پہلے ہی تمہاری حرکت کی وجہ سے ہرٹ ہوئے ہیں۔ میری معصوم بہن ربیہ، کس طرح آنٹی منہ پر کہہ گئیں کہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ اس گھر کی لڑکیاں ایسی دیدہ دلیر ہیں، سوچو اس کے معصوم دل پر کیا گزری ہوگی۔ اسے اپنے گھر والوں کے ہر احساس کی خبر تھی، اور جو قیامت میرے دل پر ٹوٹی ہے تمہیں اس کی کچھ خبر نہیں؟ وہ چیخ کر بولی۔ وہ تمہاری اپنی غلطی کی سزا ہے، اس میں میرا یا میرے گھر والوں کا کچھ ہاتھ نہیں، البتہ ہمیں تمہارے جرم کی سزا ملی ہے۔ وہ نہایت صفاقی سے بولا۔ جرم؟ کیسا جرم؟ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیا حق پہنچتا ہے آپ لوگوں میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا؟ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ مت چیخو، جو جھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح چیخا کرتے ہیں۔ میں جھوٹی ہوں تو تمہارے والدین کون سا گنگا نہائے ہوئے ہیں؟ ان کے سازشی ذہن دیکھے ہیں میں نے، کروڑوں کی جائیداد میں سے چند لاکھ ہمیں اس بہانے سے دے کر دودھ میں پڑے پال کی طرح نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ شٹ اپ بیا، میرے اور تمہارے بیچ اب کوئی رشتہ نہیں، اگر کچھ تھا تو میرے پیرنٹس اس کو توڑ چکے ہیں، اور میں اپنے پیرنٹس کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا، خدا حافظ۔ یکدم لائن بے جان ہو گئی۔ جھوٹا، دغا باز، فریبی، اب پیرنٹس کے فیصلوں کا پابند ہے اور میں کچھ بھی نہیں۔ وہ وہی کارپیٹ پر بیٹھ کر دھواں دار رونے لگی۔ ایک آخری آس بھی چکنا چور ہو گئی۔ اسی وقت کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ کون ہے؟ اب کون سی آفت آئی ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے زویا کھڑی تھی۔ بیا نے اپنا منہ دوپٹے سے رگڑا، اس کے طرف پشت پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بے فکر رہو، میں خودکشی نہیں کروں گی، میں بہت بزدل ہوں۔ زویا کی نظروں کا مفہوم جان کر بولی۔ وہ جیسے تھک کر ایزی چیئر پر گر گئی۔ تم نے زریاب بھائی کو فون کیا تھا؟ زویا نے چند لمحوں بعد پوچھا تھا۔ کیا تھا، پھر؟ وہ درستی سے بولی۔ ہو گئی تسلی؟ وہ جیسے دروازے سے چپکی اس کا فون سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پورا خاندان اس قدر دھوکے باز ہوگا۔ ان کے ظاہر اور ہیں، باطن… اور وہ جیسے منہ میں ہی بڑبڑائی۔ اب تو سوچ سکتی ہو نا، زویا دل گرفتگی سے بولی۔ اور اس کے باوجود ممی انہی لوگوں سے چپکی رہنا چاہتی ہیں جنہوں نے اس طرح ہمارا تماشا بنایا ہے۔ وہ سلگ کر بولی۔ تمہارے لیے کھانا لے آؤں؟ زویا اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ زہر لے آؤ کہیں سے؟ وہ تب کر بولی۔ جی جلانے سے کوئی فائدہ نہیں، زویا سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ممی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، انہوں نے کھانا کھا لیا؟ نہیں۔ زویا پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ زویا کافی دیر کھڑی رہی، آخر ہار کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ قیامت سی رات سر پہ کھڑی تھی۔ زویا نے بصد منت ماں کو کھانا کھلایا تھا۔ عارفہ تو سعدیہ کے گھر سے آ کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ سعدیہ مانے گی۔ انہوں نے کون سا زندگی بھر اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی تھی جو اب وہ خیال کرتی۔ ممی آپ نیند کی گولی لے لیں، اس طرح مسلسل سوچنے اور جاگنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زویا گولی لیے سر پر کھڑی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ایک گولی لے کر کھائی۔ بیا نے کچھ کھایا؟ وہ لیٹتے ہوئے بولی۔ جی 2-4 لقمے بڑی مشکل سے کھلا کر آئی ہوں۔ اس نے قصدن جھوٹ بولا۔ انہوں نے کروٹ لی تو وہ لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی۔ زویا نے باہر نکل کر مین لائٹس آف کی۔ ان کے پورشن میں موت کا سناٹا تھا۔ ایسی خاموشی، ایسا سناٹا تو ڈیڈی کی موت پر بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کتنے دن تک تایا جی اور چاچو کی فیملی ان کے پورشنز میں ہی رہی تھی۔ تینوں ٹائم کا کھانا محض ان کی دلجوئی کے خیال سے ادھر ہی کھایا جاتا، اور اب کئی دنوں سے کسی نے شکل نہیں دکھائی تھی۔ اور بیرونی کوریڈور کی لائٹ آف کرنے باہر نکلی تو جو ہی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ولید پورت سے نکل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ اس کے پاس رک گیا۔ نہیں، بس سونے جا رہی تھی۔ اس نے لان کی طرف دیکھا۔ چھوٹی تائی اور بیا سو گئیں؟ معلوم نہیں، کہہ تو رہی تھی سونے لگی ہیں۔ تائی کو کوئی ٹیبلٹ دے دینا تھی نیند کی، دے دی ہے۔ ویسے ولید، کیا ٹیبلٹ سے سکون مل جاتا ہے؟ معلوم نہیں، لیکن اللہ کرے وہ سو جائیں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گئے۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ سر اٹھا کر تایا جی کے پورشن کی طرف دیکھنے لگی۔ گھر کی تمام لائٹس روشن تھیں۔ دونوں خاموشی سے ٹہلنے لگے۔ ولید، ممی کہاں گئی تھی؟ پھپھو کی طرف؟ کس لیے؟ تمہیں معلوم نہیں کیا؟ وہ چھمبے سے بولا۔ ممی نے ذکر تو نہیں کیا، ویسے ہی مجھے خیال گزرا کہ وہ وہاں کس لیے گئی ہوں گی۔ پھپھو نے کیا کہا؟ کل شام تک بتائیں گی۔ ان کا رسپانس کیسا تھا؟ وہ ذرا رک کر پوچھنے لگی۔ ایسے حالات میں کیا ہو سکتا ہے، بس ٹھیک۔ ولید میں یہی تو خرابی تھی، کبھی جذباتی نہیں ہوتا تھا،
ولید ایک बात बताओ, वो गुलाब की क्यारियों के करीब रुक कर बोली. पूछो. वलीद वलीद पूल की धीमी लाइट में जोया का बुझा हुआ चेहरा देखने लगा. क्या मम्मी दुरुस्त कह रही हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और उन्होंने दुनिया देख रखी है, उन्हें तजर्बा है. उसने फिर अपनी राय महफूज कर ली. फूफो की फैमिली हम लोगों से मैच नहीं करती. दिल की बात जुबान पर आ गई. तकदीर ये सब कब देखती है कि किसकी मैचिंग किसके साथ होनी चाहिए. ताया जी इतने सख्त दिल क्यों हो गए हैं? उनके फैसले में जरा भी लचक नहीं. वो आज तो सख्त दिल नहीं हुए, शुरू से ऐसे ही थे. तुम्हें शायद एहसास अब हुआ है. वलीद, वो कुछ कहते कहते रुकी और आगे बढ़कर संगी बेंच पर बैठ गई, लेकिन इस्तराब में फिर उठ खड़ी हुई. कहो, रुक क्यों गई? वो उसके बेचैन चेहरे की तरफ देखकर बोला. चाची और फरियाल एक बार भी नहीं आई. मेरे ख्याल में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वैसे तुम वो बात कहो जो पूछना चाह रही हो. जोया सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी. मुझे डर लगने लगा है, वो आहिस्तगी से बोली. किस बात का? बिया ने जरियाब भाई को फोन किया था. उनका रवैया बेहद खराब था, शायद ताया जी से भी ज्यादा. बिया बहुत रोई. वो तो बिया से बहुत मोहब्बत करते थे. कम अज कम उन्हें तो इस तरह नहीं करना चाहिए था. वो रुक रुक कर बोल रही थी. जोया, वलीद ने उंगली से उसकी ठोड़ी ऊंची की. तुम वो बात पूछो जिसका जिक्र कर रही थी, और इन हालात में जरियाब भाई से इससे बेहतर रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती थी. तुम अपनी कहो. अगर तुम्हें मालूम है तो तुम खुद क्यों नहीं समझ जाते? वो झिल्ला कर बोली. मुझे क्या मालूम भला? वो अनजान बनकर बोला. मैं अपनी और तुम्हारे ताल्लुक की बात कर रही हूँ. वो जैसे हार कर बोली. जोया, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन? हाँ, आजकल तो बड़े बड़े यकीन की मजबूत इमारतें धड़ाधड़ गिर रही हैं. मैं क्या किसी का यकीन करूं? फिर तो तुम्हें मेरे लफ्जों मेरे वादों पर भी यकीन नहीं आएगा. इसलिए इस मौजू को अभी रहने दो. उसे वक्त साबित करेगा और उसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 6-8 माह से ज्यादा नहीं, इसका मैं तुमसे वादा करता हूँ. वो ठोस लहजे में बोला. अगर ताया जी ना माने, चाचू चाची, तो उसके अंदर खदशे ही खदशे उगाए थे. तुम तो राजी हो ना? कोई ना भी माना तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे. मुझ में इतनी जुर्रत है, और मैं ना आंखों का अंधा हूं ना कानों का कच्चा कि किसी उल्टी सीधी कहानी मफरूजे के चक्कर में आ जाऊं. मुझे अपनी अकल पर भरोसा है और खुदा पर यकीन. तब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, कुछ भी अपने मुतल्लिक सोचे बगैर. आजकल तुम सिर्फ छोटी ताई और बिया को तवज्जो दो. वो दोनों बहुत डिस्टर्ब हैं, उनका ख्याल रखो. तुम्हारी सोचें आजकल किस नहज पर चल रही हैं मुझे सब पता है. तुम अपनी फिक्र करना छोड़ दो. तो अब मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम जानती हो मैं कितना जिम्मेदार हूँ, और मैं बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले मुझसे भी नहीं हूँ. अगर सब कुछ भी मुझसे छीन जाए तो भी मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं खुद कुछ कर सकूं और तुम्हें अपने बाजुओं के हिसार में लेकर सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकूं. और बस बस मिस्टर रोमियो, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं. मैं सोने जा रही हूँ और अब मुझे बहुत नींद आ रही है. शब बखैर एंड थैंक यू. वो कहकर रुकी नहीं और तकरीबन दौड़ते हुए लॉन अबूर कर गई. तो वलीद के चेहरे पर बड़ी जानदार सी मुस्कुराहट फैल गई. बिया अपने कमरे की खिड़की से दोनों को टहलते हुए देख रही थी. जोया, खुदा तुम्हारे सारे वसवसों को दूर करे. तुम हमेशा खुशबाश रहो. वो खिड़की के पद पर सर रखकर रोने लगी. जरियाब का हद तक अमेज रवैया, ताया जी की नफरत, ताया जी की हकारत, उसके तो हर जानिब कांटे उगाए थे.